everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Kanksha Gupta is here with another new video that we have on the topic of recurrent aphthous ulcer. So basically this is the important topic for oral pathology as well as oral medicine point of view. So this question is frequently asked by examiner or in the exams. We appear in the exams. So what is recurrent aphthous ulcer? So as the name suggests, recurrent means it is occur repeatedly. Okay. Aphthous means there is a ulcer which is in the groups. Stomatitis means there is inflammation of oral mucosa. So combination of this is like, so the definition is common disease which is characterized by there is development of painful or recurrent multiple ulceration on the oral mucosa. Okay, now we have etiology. First we have etiology. So there first one is bacterial infection. So there is bacteria which is responsible for recurrent aphthous ulcer, like we have streptococcus and streptococcus mutans which is responsible for RAS. Okay, second we have immunological abnormality. So what happened in this? In this there is a resultant of autoimmune response. In autoimmune response what happened कि हमारी जो बॉडी होती है वो अपने अच्छे सेल्स पहचानने में नहीं पहचान पाती, जिसकी वजह से इट स्टार्ट किलिंग आवर ओन सेल्स, ड्यू टू विच देयर इज autoimmune response. So what happened in autoimmune? So to prove autoimmune response, there is an experiment which is fluorescent antibody techniques. In this, what happened? इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमारा RAS का पेशेंट है, लाइक अगर पेशेंट है RAS का, तो उस पेशेंट में देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ IgG एंड IgM on the epithelium cells of spinous layers. Spinous layers जो होती है उस पे there is a binding of IgG and IgGM in the RAS patient, while in normal patient there is no binding. Okay, so this is all in immune abnormality. Next we have iron and vitamin B12 deficiency. So what happened in this? In this there is a experiment that is Rapp and his colleague. He done with a experiment. उसने क्या किया? उसने 300 पेशेंट लिए ऑफ RAS के पेशेंट लिए उसने 330. उसमें उसने स्क्रीनिंग की डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड. तो उसने क्या देखा कि इसमें देयर इज अ 47 to 50 पेशेंट ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं. सो उसमें क्या कहा कि कंक्लूजन में क्या निकला कि प्राइमरी फैक्टर नहीं है. जो हमारा डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और B12 है ये हमारा प्राइमरी फैक्टर नहीं है. इसमें क्या हो रहा है? डेफिशिएंट ऑलरेडी है, ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है देयर इज अ टेंडेंसी टू अल्सरेट दी लीजन. तो उसकी वजह से क्या होता है? अल्सरेट लीजन करता है, तो उसकी वजह से हमारा RAS एक्सप्रेस्ड हो जाता है. ओके, सो व्हाट ही स्टडीड फॉर द कंक्लूजन इज देयर इज iron and vitamin B12 deficiency is not a major etiology factor for occurring of RAS. Okay, now we have genetic. So what happened? Genetic history. So in this he what he state in इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि अगर हमारे पेरेंट्स को RAS है तो there is a chance कि हमारे children. Now we have predisposing factors. So predisposing factors क्या हुआ कि हमारे ये disposing factors. So there is already underlying factors, like already there is factors जिसकी वजह से हमारा RAS हो रहा है. So first we have trauma. तो ट्रॉमा बेसिकली किस वजह से होता है? ट्रॉमा क्या हुआ? लाइक वी हैव, अगर ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से RAS के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ट्रॉमा वी हैव टूथ ब्रशिंग की वजह से, कोई डेंटल ट्रीटमेंट हुआ, सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ, और वी हैव इरिटेशन, लाइक वी हैव इरिटेशन और हमारा कोई डेंचर पहना उसकी वजह से ट्रॉमा हुआ. सो टूथ ब्रशिंग की वजह से. तो दिस ऑल आर फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉमा, ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ RAS.
ओके, नाउ सेकंड वी हैव एलर्जिक। सो एलर्जिक क्या हुआ, पेशेंट अगर किसी चीज से एलर्जी है, लाइक वी हैव ड्रग एलर्जी है, फूड, और वी हैव अस्थमा है, हे फीवर है, इसकी वजह से देयर इज अ चांस इन इंक्रीज ऑफ RAS। नाउ वी हैव ट्रॉमा, एलर्जी, साइक्लिक फैक्टर। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस, बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा पेशेंट विच इज लाइक सपोज स्ट्रेस हुआ है, कि जिन चिल्ड्रंस में एग्जाम देने हैं तो उनमें स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ RAS। अगर वही बच्चा हॉलीडेज में होता है तो देयर इज नो स्ट्रेस, तो वो RAS कंप्रेस्ड हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली ऑफ स्ट्रेस। ओके, नाउ वी हैव एंडोक्राइन कंडीशंस। सो एंडोक्राइन कंडीशंस में क्या होता है, जिसकी वजह से लाइक वी हैव मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुएशनल पीरियड, मेनोपॉज, और वी हैव प्रेगनेंसी। दीज आर द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RAS। इस पीरियड में चांस हो जाते हैं, हाई चांस हो जाते हैं टू क्रिएट टू अकर ऑफ RAS। लाइक वी हैव मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है प्री मेंस्ट्रुएशन पीरियड, उसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं recurrent एप्थिस अल्सर्स के। ओके, now we have systemic disease. So systemic disease में क्या, like we have a disease like HIV patient है, उसमें चांसेस रहेंगे, Paget syndrome है, और we have a Paget syndrome HIV patient, और we have cycling neutropenia. This is all our condition, और we have Paget syndrome. इसमें क्या, इन सब conditions में there is increased chance of RAS. So now we have clinical features. So clinical features में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा ये किस एज में होते हैं, that we have second और third decades में होते हैं, second और third decade of life. Females are more commonly affected than males, और we have side. एज तो हो गई हमारी second और third decade of life. Okay, sex we have females are more commonly affected. Side we have buccal and lingual mucosa. And buccal and lingual sulci है, we have lips, tongue, pharynx, gingiva, these all are affected. Okay, now we have clinical features कि appearance कैसा हो रहा है, उसका appearance कैसा हो रहा है, क्या होता है, सबसे पहले begin with ulcer. ulcer होने से पहले there is a burning, 24 to 48 hours हमारी burning होती है, like this is area which is affected. तो there is ulcer होने से पहले इस area में हमें 24 आवर्स और 48 आवर्स में हमें ओके और इसमें ये जो होगा वो स्टार्ट होगा सिंपल और मल्टीपल नोडुल्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, उसकी वजह से स्टार्ट होगा, और देयर इज अ ग्रे मेम्ब्रेन विच इज अकर सीन ऑन द अपर मोस्ट लेयर. ओके, सबसे पहले हमें ग्रे मेम्ब्रेन, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इरिथमा, एंड वी हैव स्मॉल व्हाइट पैचेस. हमें सबसे पहले क्या दिखेंगे इसमें, स्मॉल व्हाइट पैचेस, और अल्सरेटेड होगा, इनलार्ज्ड होगा, अबाउट अल्सरेटेड होगा, इनलार्ज होगा अबाउट 48 to 72 आवर्स में. ओके, और स्टार्टिंग में ये पेनफुल होता है, लेटर ऑन इट्स पेनफुल, और जब हम खाना खाते हैं अबाउट फ्यू डेज तक ये हमें इंटरफेयर करता है व्हाइल ईटिंग द फूड. ओके, नाउ वी हैव हिस्टोलॉजिकल फीचर्स. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम सुपरफिशियली, ऊपर से डीप में जा रहे हैं, लाइक सुपरफिशियल टू डीप. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, देयर इज अ फिब्रिनोप्रूलेंट मेम्ब्रेन. ओके, सबसे पहले फिब्रिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, सबसे पहले हमें मेम्ब्रेन दिखेगी, उसमें उसके बाद क्या होगा, एपिथेलियम प्लोरिफरेशन होगा, जो मार्जिन से अगर हमारी जो लाइक सपोज दिस इज आर अल्सर. ओके, सबसे पहले क्या होगा, इसके ऊपर सबसे पहले जो कवर होगी, जो लेयर कवर होगी, दैट इज फिब्रिनोप्रूलेंट मेम्ब्रेन से कवर होगी. ओके, इसके मार्जिन्स पे हमें एपिथेलियम प्लोरिफरेशन दिखेगा, इसके बेस पे हमें, इस लीजन के बेस पे हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखेंगे. ओके, और इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो फिल्ड होगा इंटेंस इन्फ्लामेटरी सेल्स से. ओके, अब क्या होता है, जब इसमें इंटेंस इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं तो देयर इज ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स व्हिच इज सीन इन द लीजन. ओके, नाउ वी हैव साइंटिस्ट आया, दैट इज वुड ने क्या किया, उसने कहा देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक चेंज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एपिथेलियम.
एपिथेलियम के जो न्यूक्लियाई में है उसे कुछ चेंज दिखे, तो उस सेल्स में क्या चेंज दिखे उसे, देयर इज न्यूक्लियाई दिखे, क्रोमेटिन्स बार थे विच इज हैज अ न्यूक्लियाई विच इज रेडिएटिंग प्रोसेस एक्सटेंडिंग टू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या हो रहा था कि सबसे पहले तो इलॉन्गेटेड सेल्स दिख रहे थे, उसके बाद क्या होता है क्रोमेटिन बार दिखे जो कि हमारे रेडिएटिव प्रोसेस की वजह से वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो इन सेल्स को हमने कहा काउ सेल्स। सो एनिटकाउ सेल्स क्या है कि ये हमारे आरएएस में दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनिटकाउ सेल्स जो हैं वो सिर्फ आरएएस में नहीं दिखेंगे। ओके, उसमें चांसेस हो सकते हैं कि आरएएस में दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि अगर हमें एनिटकाउ सेल्स हम अगर आरएएस में दिखे तो दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स, तो इसका कैरेक्टर फीचर्स नहीं है, ये हमें सिंगल सेल एनीमिया में, अदर डिसीज विच इज वी हैव सिंगल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इन सब में हमें दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। नाउ हैव अ ट्रीटमेंट। ओके, सो ट्रीटमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले हमें जो इटियोलॉजी है, ओके, उसको स्टॉपेज करेंगे, जिस वजह से हमारा आरएएस हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे। और वी हैव, अगर हमारा माइल्ड केस है, अगर आरएएस हमारा सीवियर केस में नहीं गया है, माइल्ड केस है, तो वी डन विद दी ट्रॉपिकल टेट्रासाइक्लिन माउथ वॉश प्रेफर करेंगे, और वी हैव टेट्रासाइक्लिन माउथ वॉश कराएंगे अबाउट 4 बार 5 to 7 days, और वी हैव ट्रॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, और वी हैव ट्रॉपिकल ट्राई अमीनो ऑक्सीडाइज 4 दिन 4 बार के लिए करेंगे। ओके, अगर हमारा सीवियर केस है तो हम उसमें, अगर हमारा सीवियर केस है तो हम उसमें बेक्लोमिथाजोन स्प्रे गिवन कर प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, और वी हैव अ ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया, ट्रॉपिकल क्लोरो टेट्रासाइक्लिन इज गिवन, और वी हैव गिवन द निकोटिन टैबलेट, क्लोरहेक्सिडीन, ये सब हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, so this is all about treatment part. So this is all about RSA. So if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.